Hello, friends. Thank you for so much love to my GST video part 1. I know many of you personally messaged me कि सर आपकी authentic information होते we trust you, so please don't feel baffled, please don't get irritated if certain people have said wrong things about you. I never took those things in a right way, but I only believe that बोलते हैं ना एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल आगे करने का बापू ने बोला था, पर कोई दूसरे पे भी मारे तो फिर क्या करने का वो बापू ने नहीं बोला. So that is how you can say I reacted. It had been too much. So I just put my opinion back, not to be baffled, not to be and didn't feel bad in any way. So thank you. I'm sorry for the delay. First of all, this was supposed to be in the approximates, as you can say, dates of 2025, between 20th and 25th of Feb, but had a personal problem, so could not, you can say, come live for any video in the past almost 25 days. But here I am back with GST video part 2 to give you more clarity. So those of you who have not watched the video, the same video is on YouTube with the same title, just that today's video is titled part 2 and that video will be titled part 1 and the same heading, GST for dentist part 1 part 2, clarity to confusion. And there will be a part 3 of the video as well, where I'll be answering all the queries that were posted. I intentionally requested all the participants to post all the queries in the chat section or the comment section of the video so that I can answer your queries in detail. That video will come out tomorrow morning at 7:30. Every day we come out with a video on my YouTube channel at 7:30, and this channel is exclusively for the community. So whether you guys are watching or not, it's your choice, but we do our daily bit of effort to give back to the society. So coming to the topic, let me just share my screen so that we can begin the proceedings. So this is my video titled part 2. Of course, as I said, we are going to be removing all the cobwebs, all the myths around it. And what gives me happiness is that many of you have taken that thing very, very seriously and very, very in a very, very positive way. So thank you, Lord Almighty, for giving me what more than what I deserve. And of course, big thanks is due to my dad as well, who has been instrumental in teaching me the clinical part of finance, law management, and life coaching. And of course, this is my brief CV, gives me a bit of authority to divulge on the topic. And of course, there is a reason that I made this video, because GST changes are here to stay, and we should not be taking it lightly. Why I'm saying it? There were a lot of questions that were posted, presumably around 20 or so, which have been answered in the next video, of course, which will be uploading tomorrow morning, as I said. But before answering all the queries, I'm answering all the salient features, posting all the salient features of the GST part, and that will more or less answer all the queries that were posted. But still, I will be answering, or I have answered all those queries separately. So let's begin. Of course, I'll be using a mix of English and Hindi, and the titles are on, the subtitles are on, I mean. So if you want, you can switch the CC button on the YouTube channel, and you'll see the transcript displayed below in English. But if not, you can choose the regional language as well. So what are the salient features in this part 2 videos about GST? The number one, as I said, if you have not watched part 1, please go and watch part 1 first. But if not, I'll be covering a few things up there as well today. So the first thing is any amount, total turnover. Total turnover of your clinic from your all sources of clinic income. Can be dispensing, can be cosmetic, can be exempt, non-exempt, threshold, whatever crosses 20 lakhs. Total collection we are talking, not the net income. Total collection, if it crosses 20, you are liable to get a GST number. As simple as that. You don't have a threshold of 20 lakhs crossed, you are earning less than gross, you can say close to 1.6 lakhs per month, roughly 20 lakhs per year, or a little less than that, don't go in for that. But I believe that very few dentists would be there who would not be crossing this threshold. But yes, once you cross this threshold once, means your gross income is 20 lakhs. Remember, all the departments work together. So this comes under the Ministry of Revenue, or the CBIC, which is the Central Board of Indirect Taxes and Customs. And the income tax is CBDT, Central Board of Direct Taxes.
both of them work in unison. So your details are shared intra-department. So if you believe that you have filed a return of 21 lakhs or 20 lakhs, as I mentioned in my budget review and GST part video 1 as well. So just in the search of what has been newly introduced in the बजट 2025 की 24 लाख तक की इनकम हुई तो 50% एक्सपेंसेस, 12 लाख तक का टैक्स आपको जीरो पड़ेगा. तो इमेजिन दोज थिंग्स. आपकी इनकम आप कर रहे हैं लेकिन आप उसमें कह रहे हैं कि मैं तो कॉस्मेटिक काम करता ही नहीं. नॉट पॉसिबल. सो यू आर अलाउड एग्जाम्पशन वंस. आप एक बार ही आपने 20 लाख क्रॉस किया, यू हैव टू ऑप्ट फॉर अ जीएसटी नंबर. वंस यू हैव अ जीएसटी नंबर, अगले साल भगवान ना करे आपकी इनकम 5 लाख हो, 10 लाख हो, 11 लाख हो, आपका इनकम टैक्स चाहे जीरो बने. आई एम अगेन टॉकिंग ऑफ द ग्रॉस कलेक्शन, नॉट द नेट इनकम. आपकी ग्रॉस आपकी इनकम टैक्स जीरो बने, स्टिल आपको जीएसटी देना पड़ेगा. मान के चलो कि आपने सिर्फ एक कॉस्मेटिक फिलिंग की इंटीरियर की, लेट्स सपोज यू चार्ज 1000 रुपीज. अगर आपकी एक फिलिंग की पूरे साल में कॉस्ट है जीएसटी की, तो आपको टोटल कलेक्शन चाहे आपकी 5 लाख है, 6 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है, वट एवर, यू स्टिल हैव टू पे 1000 जीएसटी ओवर दैट 1000 रुपीज. अगर आपने पेशेंट से चार्ज किया ग्रेट, नहीं चार्ज किया तो अपनी जेब से दो. दैट इज वॉट द कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट. देर शुड बी नो कंफ्यूजन. मेरा इतना है नहीं है, मेरा आएगा कि नहीं आएगा. प्लीज, देर इज नो डिबेट अबाउट इट. आई एम जस्ट पुटिंग राइट थिंग्स इन द पर्सपेक्टिव व्हाट आई नो एज पर माई लिटिल नॉलेज. सो व्हाट आर द इंक्लूजन दिस अमाउंट? इंक्लूडिंग दिस ऑल क्लिनिक इनकम, चाहे आप डिस्पेंसिंग करते हो, चाहे आपकी एग्जाम इनकम है, चाहे ऑल दोज इनकम. दिस अमाउंट एक्सक्लूड्स योर अदर सोर्स ऑफ इनकम, लाइक आपकी एफडी की इनकम, आपकी रेंटल इनकम, आपकी और भी कोई इनकम आ रही है, आपकी शेयर मार्केट की इनकम, कैपिटल गेन्स, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है. वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट योर प्रोफेशनल स्पेस इनकम. So please be very clear about it. Only inclusions is professional space income and not your other sources of income. I hope that gives you a clarity. So what all treatments are included? Presently, cosmetic में वो लोग zirconia, veneers, whitening, ये चीज़ों को लेके चल रहे हैं. Implants in anterior zone, gray zone. कवर होएगा नहीं होएगा आने वाले टाइम में शायद हो जाए, अभी शायद नहीं है, एम्बिग्यूटी है. क्लास 3 क्लास 4 टेक्निकली येस दे आर इन द एंटीरियर जोन. So you take your call. I'll count them in that because they come in the cosmetic services only. Even if it for a functional purpose, the class 3 or the class 4 cavities are counted in that, whether they mention or this or not. Black triangle treatment, implants in aesthetic zone, बहुत कुछ आता है जो अभी ambiguity में है. But as of now, if you have to say cosmetic treatment में cosmetic fillings, maybe zirconia crowns, maybe veneers, maybe bleaching. अलाइनर्स अभी तक फंक्शनल में आते हैं, अभी तक नहीं है. देर आर लॉट मेनी थिंग्स इन ग्रे जोन विच अ कपल ऑफ colleagues have asked in the questions as well, which I'll be taking up tomorrow in the tomorrow's video. But एज ऑफ नाउ कॉस्मेटिक में आता है कि नहीं आता, अब आपको डिसाइड करना है कि आप उस लाइन को, बाउंड्री को क्रॉस करना चाहते हैं कि नहीं. आई गिव यू स्टेप वाइज थिंग फॉर दैट. सो ऑल ट्रीटमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड. Of course, anything functional is not included. Anything cosmetic aesthetic is included. So there is ambiguity in some. Take your call. I'll come to that in the later section of this video. Number one point. Number two, uh, uh, the starting point is the total turnover or the collection. So what are the extras in your life? नंबर 1, जीएसटी नंबर अप्लाई करना पड़ेगा. नंबर 2, डिस्प्ले पे बाहर लगाना पड़ेगा क्लिनिक के. नंबर 3, आपको जीएसटी की सेपरेट बिल बुक, आपकी नॉर्मल बिल बुक जो है फाइन, आपको एक सेपरेट जीएसटी बिल बुक रखनी पड़ेगी, जीएसटी की सेपरेट रिसीट बुक रखनी पड़ेगी. Remember, receipt book and bill book are two different things. I have multiple videos made on that. You can search my channel for that. You'll find answers to that. Rate calculation के साथ. Then charge the GST from the patient. Then deposit the same with the government. कब करना? I'll tell you that. Then file GST returns. तो आपके ये extras आपकी लाइफ में आने वाले हैं. ठीक है? So it's not about that part. Then नंबर 4, हाईली अनलाइकली कि अगर आप कहें कि अगले साल मेरी 20 लाख नहीं क्रॉस हुई कि मैंने तो उसमें कॉस्मेटिक किया ही नहीं. आप 1 रुपये का भी कॉस्मेटिक काम ना करें पूरे साल में 20 लाख की इनकम करके भी, इट इज इनडाइजेस्टेबल. सिंपल, इनडाइजेस्टेबल. सो ऐसे मतलब बेवकूफ़ आप दुनिया को बना सकते हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट सीबीआईसी को नहीं बना सकते, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू को नहीं बना सकते. वी ऑल नो व्हाट वी आर डूइंग इट. ठीक है, सिंपल बात ये है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए. आपने क्लिनिक के बाहर लिखवा दिया जीएसटी नंबर. जीएसटी नंबर लिखा मतलब जीएसटी अंदर चार्ज होता है. Every shop who has a GST has a GST number displayed prominently outside. That is as per the rules of the department. Of course, the patient comes in for a cosmetic treatment. You tell the patient the same, and you tell them, और यार आप अपनी जेब से दे रहे हो क्या? The patient is paying. You are not paying from your pocket. So why it is the problem?
यू इंश्योर कंप्लायंस। और मान के चलो कॉस्मेटिक वर्क इज अ वांट बेस्ड ट्रीटमेंट, कोई भिखारी नहीं कराने आता, पैसे वाला कराने आता है। ठीक है ना, इट इज नॉट अ नीड बेस्ड ट्रीटमेंट कि हाँ जी यार वो बेचारे के दांत दुख रहे हैं, उसको खाना नहीं खाया जा रहा, उसको कॉस्मेटिक काम कर दो खाना खा लेगा। नो, दैट इज अ वांट बेस्ड ट्रीटमेंट। सो अंडरस्टैंड बिटवीन द नीड्स एंड द वांट्स। ठीक है ना, जो कॉस्मेटिक काम करवाता है वो जीएसटी देने की भी हिम्मत रखता है, सिंपल। आपको आपकी रात की नींद क्यों खराब करनी है जस्ट बिकॉज पेशेंट ही पे करेगा? आपको भी पेशेंट को ये बोलना है कि जीएसटी मेरी जेब में नहीं जा रहा भाई साहब, मेरी तो कंप्लायंस बढ़ गई है, मेरा तो सारा ट्रीटमेंट बिना जीएसटी के होता था, मेरा तो सब कुछ जिंदगी आसान थी मेरी, ये मेरे को अब 6 चीजें करनी पड़ी जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई। मेरी तो लाइफ इस तरह मुश्किल हुई है ना। तो आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं? गवर्नमेंट का लॉ बना है, मैं तो कंप्लायंस इंश्योर कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा कल को मेरे पे जीएसटी रेट पड़ जाएगी, मैं क्या करूंगा? सो अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड दिस थिंग प्लीज वेरी वेरी क्लियरली। देन you don't need a separate account record register कि cosmetic अलग रखो उसका अलग रखो। You can have the same record. For example, if you're using an Excel based sheet, just add a column GST if applicable, because आपकी जेब में उतना ही रहने वाला है। लेट्स सपोज आपने 20 लाख कमाया, लेट्स सपोज इसमें से 1 लाख का आपने कॉस्मेटिक काम किया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट थिंग्स इन अ सिंपल मैथमेटिकल वे। तो आपकी टोटल कलेक्शन क्या रहेगी? 21,18,000। कि आपका 20 लाख टोटल था, 1 लाख का आपने कॉस्मेटिक काम किया, उस पर 18,000 जीएसटी, तो आपकी 21,18,000 कलेक्शन है। आपकी जेब में फिर भी 21 लाख ही आया। अगर पहले 21 आ रहा था अब भी 21 आया, वो 18,000 जो एक्स्ट्रा आपने पेशेंट से लिया वो गवर्नमेंट को देना है आपको। उसके बदले आपको क्या मिलेगा? आई कम टू दैट। बट गवर्नमेंट, पेशेंट को ज्यादा देना पड़ा, गवर्नमेंट को ज्यादा मिल गया, आप तो मीडिएटर हो बीच में। आपका ना बढ़ेगा ना घटेगा। जो बोलते जीएसटी हम अपनी जेब से पे करेंगे, नीड टू थिंक अगेन। मैं नहीं कहूंगा बेवकूफ है, बट नीड टू थिंक अगेन। बट यू इंश्योर कंप्लायंस एंड पीसफुल स्लीप एट नाइट। अगर दिन में भी सोते खराटे मार के तो डेफिनेटली मोर देन, प्लीज डोंट गेट इनटू दैट स्पेस। नहीं नहीं, मैं तो कॉस्मेटिक काम करता ही नहीं हूँ जी, बिल्कुल भी नहीं करता हूँ जी, मेरी कलेक्शन 40 लाख है साल के, लेकिन मैं करता ही नहीं हूँ। प्लीज डोंट फूल एनी वन अराउंड यू। Government bodies in this era of NDA government have more power and wings, you know. And as I said, Central Board of Indirect Taxes and Customs, वो बेचारे प्रेम पत्र या लव लेटर या नोटिस नहीं भेजते हैं। ठीक है ना, जिसके पास जीएसटी है, नंबर है, उस पर सीधा जीएसटी की रेड पड़ती है। इनकम टैक्स वाले तो पहले लव लेटर भेजते हैं, कंप्लायंस इंश्योर करते हैं, भैया हमने देखा है कि आपकी बैंक में इतनी ट्रांजेक्शन है, आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप इसको सुधार लो, और हम टैक्स पे कर देते हैं, एंड दे लिटरली से नथिंग टू यू। सिर्फ आप उनके रडार में आए थे कि ये बंदा टैक्स चोरी करता पकड़ा गया था, पर इसने कंप्लाई कर दिया, चलो शरीफ है। दिस इज हाउ इट इज। ऑल दीज थिंग्स आर सेल्फ असेसमेंट ओनली, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं जीएसटी अवेड नहीं करता हूँ या करता हूँ, यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट। आई हैव पर्सनली सीन at least 3 people, one computer vendor, one sweet shop owner, and one, I don't remember, yeah, one was a stationery shop, all high selling. I have witnessed GST raid in all three of them in the past 3 years. I was lucky or unlucky to be in the wrong place at the wrong time, या पता नहीं मैं ही पनौती था उनके लिए, तो आई डोंट नो। पर उन तीनों की जीएसटी रेट पड़ती मैंने देखी है। सो जीएसटी वाले आपको लव लेटर नहीं भेजेंगे, सीधा रेड मारेंगे। और इसमें बहुत बड़ा रोल अपने नेबरिंग डेंटिस्ट का भी होगा। जो मैं बोलता हूँ ना, बना के रखो, आपका सबसे बड़ा सगा आपका नेबर है, तो बना के रखो उससे। देन पॉइंट नंबर 7, हेल्थ केयर आपका जीएसटी से एग्जाम्प्ट है, बट एज अ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट यू विल गेट आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और वो एडजस्टेबल है अगेंस्ट द टैक्स टू बी पेड। अब आपको सिर्फ ये बात समझनी है, आपके बाकी सारे किसी भी ट्रीटमेंट के ऊपर जीएसटी के ऊपर आपको टैक्स वापस आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करते हो, सिर्फ कॉस्मेटिक पे मिलेगा। पर आपने Z100, Z250, Z350 जो भी आप कॉस्मेटिक मटेरियल यूज करते हो, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए नाम ले दिया 3M के मटेरियल्स का, ऑफ कोर्स आई एम नॉट प्रमोटिंग देम एट ऑल। करिश्मा ले लो, कुलजर की, वट एवर मटीरियल, आई एम नॉट अगेन नॉट पर्सनली प्रमोटिंग एनीथिंग, जस्ट मेंशनिंग यू। वो फिलिंग आप फंक्शनल के लिए यूज कर रहे हो, कॉस्मेटिक के लिए भी यूज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो डोंट चार्ज द फुल आईटीसी फॉर दैट। लेट सपोज मेरी 2,000 की सिरेंज आई, तो उसका 2,000 का 2,000 आपने आईटीसी क्लेम की, डोंट डू दैट। आपकी टोटल ट्रीटमेंट में उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है, कितना परसेंटेज है, कितने का मटेरियल लगा, तो प्रोपोर्शनेटली आपको करना है। ऑफ कोर्स यू विल सेव सम टैक्स पेड ऑल्सो। तो आपका फायदा पेशेंट ने ज्यादा दिया, गवर्नमेंट ने ज्यादा लिया,
आपको ये फायदा है आईटीसी का, बट ओनली ऑन द कॉस्मेटिक पोर्शन। अगर आप कह रहे हो कि मेरा 20 लाख में से सिर्फ 1,000 रुपए का काम था, तो उसके ऊपर आप इनपुट क्रेडिट ले रहे हो 2,000 का, आप सोचो ना फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको रेडी मारेगी ना। तो आप यू हैव टू चार्ज प्रोपोर्शनल, बी जस्ट, बी इन दैट। एंड दिस इज ऑल द मोर रीजन टू बाय डिजिटल ऑल्सो। आप दिखाओ, देखो मेरी परचेज इतनी है, so proportionately, because things which are to be used as a cosmetic are to be used as a functional as well. Now, number 8, you don't get input tax credit for normal treatment, मतलब बिना जीएसटी वाले ट्रीटमेंट, जैसे कंसल्टेशन कर ली, कुछ और ट्रीटमेंट कर लिया, रूट कनाल कर लिया, दीज आर नॉट ट्रीटमेंट्स जहाँ पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। जिसका जीएसटी चार्ज करोगे फ्रॉम पेशेंट, उसी मटेरियल का आप गवर्नमेंट से आईटीसी ले सकते हो, वो भी प्रोपोर्शनेटली। And same applies not only to composite syringe, it applies to bond also, it applies to etchant also, or it applies to, you can say, the instruments being used for cosmetic purposes in the anterior space, उनकी डेप्रिसिएशन के ऊपर। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपका, तो आप उस हिसाब से उसको क्लेम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, रिकॉर्डिंग एंड काउंटिंग सिस्टम डज नॉट नीड टू बी चेंज्ड, जस्ट स्टार्ट चार्जिंग इन अ डिजिटल वे। कलेक्शन ज़्यादा ही होगा ना, तो क्या दिक्कत है, 12 लाख तक तो वैसे इनकम टैक्स नहीं है, 2 लाख रुपए महीना कमाओगे तब भी जीरो टैक्स पे करोगे, व्हाट मोर डू यू वांट। पीस ऑफ माइंड ज्यादा जरूरी है कि जीएसटी की रेट का खौफ ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं कहता वो पड़ेगी, बट आई हैव जस्ट मेंशन्ड माय फियर्स व्हिच हैव हैपेंड एटलीस्ट 3 times in front of me in the past 3-4 years आफ्टर को ऑल आफ्टर कोविड। सो अभी कुछ लोग हम में से मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं, तो उनको भी यही सिस्टम अपनाना है। 5% जीएसटी मेडिसिन पे है, कॉस्मेटिक पे 18% है, इन दो के ऊपर आपको चार्ज करना है। जब तक आपके हाथ में तलवार है, उसको मयान में रखोगे, मैदान में चलाओ, आपकी चॉइस। So time to come clean till you are in the front seat. That is my only advice to you. The rest is your choice. मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, the rest is your choice. The final call is still yours. Then some of you may ask कि कैसे कैलकुलेट करेगी गवर्नमेंट। इनकम टैक्स में तो सेल्फ असेसमेंट होता है, वहाँ भी तो हम छुपाते हैं, वहाँ तो हम सारी इनकम दिखाते हैं। मैं आपको सिंपल बोलूंगा, सीबीआईसी, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड गेट्स अवे। उनको लगे कि कुछ गड़बड़ चल रही है, चल रेड मारो, काय को दुख भरी टेंशन भरी जिंदगी जीने का तुमको। यू डिसाइड आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो मान के चलो कि सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ ट्रैकिंग इज नीडेड, सेल्फ कंप्लायंस एज वेल। कौन दोस्त है कौन दुश्मन है आप नहीं जानते हो, सो डोंट बी जस्ट फैनेटिक जस्ट प्रिज्यूमिंग थिंग्स। वी एज सर्विस प्रोवाइडर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम में होता है कि 6% के आसपास आप जीएसटी दे दो फ्री, इकट्ठा। प्रेजम्पटिव टाइप ऑफ सिस्टम होता है, नॉट एक्जैक्टली प्रेजम्पटिव, प्रेजम्पटिव टाइप ऑफ सिस्टम होता है फॉर द ट्रेडर्स जैसे होता है, बट एज सर्विस प्रोवाइडर्स वी आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। सो लास्टली, अब ये जीएसटी सारा कुछ कर दिया, तो आपने बोला इस पे लेना है, ऐसे लेना है, ए बिल बुक करनी है, ये अकाउंटिंग सिस्टम करना है, ये आईटीसी लेना है, आई कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या है, जीएसटी रिटर्न भी तो भरना पड़ेगा ना। एडेड बर्डन्स तो हैं ही अपनी लाइफ में, जो है 13 तरह की रिटर्न आती है, 13 तरह की नहीं भरनी है आपको, सिर्फ 2 तरह की भरनी है। सो ऑल रिटर्न डोंट अप्लाई टू ऑल टैक्स पेयर्स। ये 13 तरह के रिटर्न आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं नाम, 13 तरह की आपको नहीं भरनी है, सिर्फ 2 तरह की भरनी है। ऑफकोर्स जिस तरह की आपकी रजिस्ट्रेशन है, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो एक और एक्स्ट्रा फॉर्म GSTR 389C भरना है। चलो आपकी 5 करोड़ से ऊपर नहीं होगी, मैं मान के चलता हूँ, बट साल की बात हो रही है, नॉट इन द मंथ। सो think about it. So what all you have to fill? So this is the thing that you have to fill: GSTR 1 and GSTR 3B. So dates आपके सामने स्क्रीन पे mentioned है, frequency आपके सामने mentioned है। So these are the two returns which are going to be filled. So I hope I have answered your queries also. But if not, I'll be definitely answering all the queries which have been posted in the comment section of this video in my tomorrow's video. So all those who have posted, thank you so much. And please, if you have liked this video, please do share with your friends and colleagues, of course, all dentists, all medical professionals। आने वाले टाइम में इम्प्लांट इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, बाकी से इंक्लूडेड नहीं होगी, मैं नहीं जानता। मेरे को जो मालूम था मैंने आपको बता दिया। जो ग्रे जोन में है आइटम्स, ऑफ कोर्स दो स्टिल कैन बी ट्रीटेड लाइक अ गार्ब। अलाइनर्स तो होते नहीं, वो तो फंक्शनल होते हैं। इम्प्लांट्स भी एंटीरियर जोन वाले होंगे, फंक्शनल नहीं होंगे। वॉट एवर इट इज, जो कॉस्मेटिक फिलिंग्स, विनियर्स, अलाइन, ब्लीचिंग, वाइटनिंग, ये सब चीज़ें तो आती हैं ना कॉस्मेटिक में।
तो उनको आप लेके चलो, मान के चलो, अगर होता है ग्रेट, नहीं होता आपकी इच्छा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो डालिए। डेफिनेटली इफ फिजिबल आई विल मेक अनदर पार्ट फॉर इट। जीएसटी पार्ट 3 तो कल आ ही जाएगा फॉर योर क्वेरीज। आगे जरूरत पड़ी 4 या 5 जरूरत पड़ेगी तो मैं बनाऊंगा आने वाले टाइम में, बट ओनली इफ यू हैव डिसेंट इनफ लॉन्ग इनफ क्वेरीज। But I've tried to address each and every portion of that, and I really hope that this comes handy for you. If not, if I have passed on any wrong information accidentally, I'm sorry for that. Please do let me know and I'll correct it in my next video with due credit. Thank you so much. Bye bye. Take care. Have a great day and a great week ahead.